So what we are doing in this chapter is some discrete probability distributions. Okay, some discrete probability distributions. So this is the last chapter for your MSTs. Okay, so we have already done binomial. No. We have already started it. 2 lectures already spent on it. Okay. So we have already discussed binomial and hypergeometric. Okay. So this is the name. And then if you want to finish it fast, so let me just make a table. Then we will discuss it. Like we can discuss it in detail also. But let us just do it like this for once. So what is your PDF? What was okay? So before PDF, let us make a column. What it is, and then what is the corresponding PDF, and what is the mean, and what is the variance. Okay, so basically I told you that you have like everything which is happening around you and discrete can be fit into certain categories. So we are studying binomial, we have already done, hypergeometric we have already done. We are going to do negative binomial and geometric and Poisson. Okay, beta. So binomial and hypergeometric we have already done. I will not repeat it. So what is negative binomial? Hypergeometry के questions हमारे बचे हैं बेटा. So we will do it in the end. So let me just tell you what was hypergeometric, that you have n objects. Okay, k are good and n are chosen. What is the probability that, okay, so random variable was x was number of good items chosen. Okay, when you choose n items. So basically probability that x is equal to k was, can you tell me what was the probability? Anybody? What was the probability? You have n objects and k are good and n minus k are bad. We are selecting small n number of objects. We want to see how many, like what is the probability that we will choose small k number of good objects. So that will be, can you tell me beta what will be this? What are the total number of ways? NCN, right? So we want okay, let us take it x. So we want x number of good objects. So basically that will be kcx, and then you have n minus k bad items. You want to choose n minus x from there, right? ये हमने already कर लिया है. Is this in clear? ऐसे किया था ना? So you have k good items. You choose x out of those k good items. Then n minus x are left. You will choose them from the bad items. How many bad items are there? N minus k. And what are the total number of ways? NCN. Okay, ये हमने कर लिया था. And without proof, I am telling you that mean will be nk upon capital N. Okay, k, this is capital K. Okay, n is the number of items you are choosing. Capital K is the number of good items and capital N is the number of total items. And the variance is n minus 1, sorry, n minus n upon n minus 1 into n into k upon n into 1 minus k upon n. Okay बेटा. And binomial के केस में क्या था कि you have n trials, each trial and trials independent. Each trial will result in success or failure with probability p and 1 minus p. p remains constant. ये आपकी binomial की conditions थी जो हमने डिटेल में किया था. तो what was, and x was number of successes. So what was your PDF probability that x will be x? That was, can you tell me? Anybody? NCx p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x.
और मीन वाज NP एंड वेरियंस वाज NP into 1 minus P. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. इसका हमने प्रूफ भी किया था, वेरियंस और उसका मीन का फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके बेटा, देखो बेटा आपके पास कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कैपिटल K नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर गुड. एंड व्हाट इज माय रैंडम वेरिएबल? कैपिटल X इज नंबर ऑफ गुड ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड. मैंने उसमें से n ऑब्जेक्ट्स निकाले हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब मुझे क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर x नंबर ऑफ गुड ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड, ये होगा ना पीडीएफ. तो x आपने गुड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने मतलब कैपिटल K में से सिलेक्ट करोगे, दैट विल बी KCX, राइट. और बाकी n माइनस एक्स बैड सिलेक्ट करोगे, बैड कितने हैं? n माइनस के. सो दिस इज द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? NCN. प्रोबेबिलिटी निकाल रहे ना बेटा. हाँ, टोटल आइटम चोजन आर n, नंबर ऑफ गुड आइटम्स चोजन इन n आइटम्स. इन लाइक आपके पास कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, उसमें से आपने स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाले हैं. Okay, and in those small n number of objects you want to see how many good objects are there. K smaller than small n. कैपिटल K नहीं, बड़ा भी हो सकता है. स्मॉल देखो बेटा आपके कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, उसके अंदर K गुड है, बाकी n माइनस K बैड है. मुझे स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ठीक है. तो वो कैसे चूज होंगे? नहीं बेटा, K n ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, वो गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं. आई एम चूजिंग n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी बोथ एनी. ओके, उसके बाद कैपिटल X इज व्हाट आर द गुड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन व्हाट आर द गुड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दीज n ऑब्जेक्ट्स. वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी गुड ना हो सकता है 1 गुड हो सकता है 2 गुड हो, राइट. सो आई एम आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू X. इसका मतलब जो मैंने n चूज किए हैं उसमें स्मॉल x अच्छे हैं, बाकी सारे बैड प्रोडक्ट्स हैं. तो दैट विल बी कि कैपिटल K जो है उसमें से मैं x चूज कर लूं, एंड देन वॉट एवर इज द बैड ऑब्जेक्ट्स दे आर n माइनस के, उसमें से मुझे टोटल n चूज करने हैं, तो n माइनस एक्स चूज कर लो. टोटल मुझे n चूज करने ना बेटा. नहीं, कहाँ K था? x ही लिखा मैंने. नहीं, मैंने x कर दिया था बेटा, उसको x ही है, सेम पैरामीटर्स यहाँ लिखे बेटा. ये देखो, दिस इज द सिचुएशन कि आपके पास एक लॉट है n ऑब्जेक्ट्स का, उसमें K गुड है, n माइनस K बैड है, और मुझे स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं. ओके, उन स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कितने गुड ऑब्जेक्ट्स? दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. नाउ इज इट ओके? डज दैट मेक सेंस? ओके बेटा, मुझे लगता है कि ऐसे करने में ना आपको समझ में नहीं आएगा. लेट अस डू इट लाइक दिस कि आज हाइपरज्योमेट्री करके फिर वन एट अ टाइम करते हैं. जो भी रह गया I'll make a video and upload. Is that okay? Okay? Yeah. So let us do one problem on hypergeometry first. So we have this question. Okay. ये ऑलरेडी है बेटा, ये टेबल तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है. वो मैं इसलिए बना रही थी, मुझे लगा खत्म करेंगे, बट खत्म होगा नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा. हाँ, KCX, यस बेटा, x, ठीक है बेटा, सेम लिखा है जो नीचे. लेट अस डू वन प्रॉब्लम बेटा. राइट डाउन अ प्रॉब्लम. अ पर्टिकुलर part that is used as an injection device is sold in a lots of 10. The producer deems a lot acceptable if no more than 1
defective is in the lot. A sampling plan involves random sampling and testing 3 of the parts out of 10. 3 of the parts out of 10 if none of the 3 is defective, the lot is accepted. The lot is accepted. Comment on the utility of this plan. Comment on the utility of this plan. So you see beta, so whatever we are doing, that kind of analysis is actually done. तो यहाँ पे क्या है कि एक particular injection device है जो that is sold in a packet of 10, right? 10 injections इकट्ठे सेल किए जाते हैं. अब जो प्रोड्यूसर है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो फाइनल जिसने चेक करना है, he will say that the lot is acceptable if no more than one defective is in the lot. मतलब at most one defective हो सकता है lot में, then only it will be sold in the market. Is that okay? बट अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे भी आपके पास क्वालिटी चेक में इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू चेक ईच डिवाइस, राइट? सो उनका सैम्पलिंग प्लान क्या है? उनका जो क्वालिटी चेक में सैम्पलिंग प्लान ये है कि आउट ऑफ दैट 10 विच यू आर पुटिंग इन वन पैकेट, यू सिलेक्ट 3, ओके? एंड अगर उन 3 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, देन यू से ओके दिस इज फिट फॉर सेलिंग इन द मार्केट. तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आगे प्रोड्यूसर के पास भेजेगा, देन प्रोड्यूसर विल हैव इट चेक. So you have to comment on कि ये sampling plan अच्छा है कि बुरा है. Can you tell me how shall we do it? Okay, so first of all we'll take a sample, we'll take a lot जो producer ने reject करना है, and we will see what is the probability that sampling plan will accept it, है ना? अगर ये कम है then it is a good plan, अगर ये ज़्यादा है then it is a bad plan. Do you understand? So let us take a lot. Let us take a lot of 10 devices having 2 bad products. ठीक है, आपने एक सैंपल ले लिया, एक लॉट ले लिया जिसमें 2 बुरे प्रोडक्ट्स हैं. दिस लॉट विल बी रिजेक्टेड बाय प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ने इसको रिजेक्ट करना है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर विल एक्सेप्ट अ लॉट ओनली इफ देयर इज एट मोस्ट वन defective device, right? Now what is the probability that sampling plan will accept it? What is the probability that the sampling plan will accept it? Can you tell me beta? Anybody? क्या चाह रहे हैं हम? सैम्पलिंग प्लान इसको एक्सेप्ट कब करेगा? नो नो नो, सैम्पलिंग प्लान ये है कि आप 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और तीनों में से एक भी बैड नहीं होना चाहिए. देखो, सैम्पलिंग प्लान इज दैट टेस्ट 3 of the parts out of 10. If none of the 3 is defective, then it will be accepted by the sampling plan, right? हाँ, तो बेसिकली या सो सैम्पलिंग प्लान मतलब आपके पास ये सिचुएशन है, 10 का लॉट है, उसमें टोटल 10 है, 8 गुड है, 2 बैड है, राइट? दैट इज हाइपरज्योमेट्रिक, ओके? एंड वी आर चूजिंग 3 and what you want that there should be none defective in that 3, okay? What is the probability that the 3 which you are choosing they all are good? That will be 8c3 times 3c0, वही है ना? उल्टा लिख लो जैसे मैंने लिखवाया, 3c0 2c0 8c3 divided by 10c3. Does that make sense बेटा? हाइपरज्योमेट्रिक वाला बन गया आपका. एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.467. इसका मतलब 46.7% चांस ऑफ सिलेक्शन. इसका मतलब एक प्रोडक्ट जो फाइनली प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट करना है, सैम्पलिंग प्लान इज
like almost 50% choosing that product. So this is not a good sampling plan. Agree? हाँ, 10 में से 3 रैंडमली चूज करके टेस्ट कर रहे हैं. ओके? उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे ना बेटा, वो अच्छा है बुरा नहीं कर रहे. ठीक है, सैम्पलिंग क्योंकि क्वालिटी चेक में हमेशा ये होता है कि यू कैन नॉट टेस्ट एवरी डिवाइस. ठीक है, बाद में मैन्युफैक्चरर भी जो चेक करेगा वो अगेन व्हाट इट विल डू, आउट ऑफ 10 जो आपके 10 के लॉट्स जा रहे हैं उसमें से कुछ लॉट सिलेक्ट करके वो हर डिवाइस चेक करेगा. राइट, उसमें चांसेस है कि 50% जो है वो बैड है तो वो वापस आएंगे. तो आपका मनी, कॉस्ट और टाइम एवरीथिंग इज वेस्टेड. राइट, क्योंकि फाइनली अगर ये सैम्पलिंग प्लान आप फॉलो कर रहे हो, मार्केट में आपका 50% मतलब मार्केट क्या, प्रोड्यूसर के पास 50% बैड प्रोडक्ट्स विल रीच. राइट, जो वापस आएंगे. ठीक है, देन यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स अगेन. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ गुड सैम्पलिंग प्लान. समझ में आया बेटा? सो दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक. नाउ यू सी, क्या कह रहे हैं? हाँ, इसके बाद तो बढ़ती जाएगी ना. सबसे मैंने क्या लिया है, एक प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ 2 बुरे डिवाइसेस थे, इसके बाद अगर 3 होंगे तो और आपके चांसेस वो मतलब उसके बाद तो वो है ना. तो ये अगर ये वाला जो है जो वर्ज पे है उसके लिए 50% चांसेस हैं. राइट, तो मतलब एक लेके आप दिखा दो कि ये वाला जो है ये फाइनली उसने रिजेक्ट करना है, हमारा सैम्पलिंग प्लान एक्सेप्ट कर रहा है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%. राइट, अगर यहाँ पे 10% होता देन इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेड. राइट, अगर जैसे 50% तो क्लियर है ना, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम यहाँ पे मेजर कर देंगे, मेंशन कर देंगे कि कितना % आपका थ्रेशोल्ड. इज दैट ओके? ओके बेटा. सो नाउ यू सी, नोट दैट हाइपर ज्योमेट्रिक जो है और बाइनोमियल में क्या था बेटा? बाइनोमियल hypergeometric case will be approximated with binomial when capital N is very large and small n is very small. Can you see that thing? देखो, बाइनोमियल में क्या था कि आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और हाइपरज्योमेट्रिक में आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है. राइट, नाउ इफ योर सैंपल साइज इज वेरी बिग और उसमें से जो जितने आप प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो दैट नंबर इज वेरी स्मॉल, उस केस में क्या होगा बेटा? ये देखिए आपके पास दिस इज द सिचुएशन कि इसमें अगर k नंबर ऑफ बैड प्रोडक्ट्स हैं, राइट, k अपॉन n इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कह दो, जो भी कहना है आपने. राइट, एंड 1 माइनस k बाई n विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ये बन जाएगी ना बेटा. सक्सेस किसको बोल रही हूं मैं? गेटिंग अ बैड प्रोडक्ट. हाइपरज्योमेट्रिक में वही काउंट कर रहे थे ना हम, दैट हाउ मेनी बैड प्रोडक्ट्स यू विल गेट. ओके, इज दिस थिंग क्लियर बेटा? तो इस केस में जब आपने व्हेन कैपिटल N इज वेरी लार्ज, आपने एक प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है, वो गुड हो बैड हो, अब दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो आप, वो भी गुड हो और बैड हो, तो ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होंगे. इंडिपेंडेंस का रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सपोज आई से यू हैव 2000 बॉल्स इन अ बैग, जिसमें आपके पास 1500 रेड है और 500 ब्लू है. सपोज यू हैव 2000 balls, ओके, उसमें 500 ब्लू है और 1500 रेड है और मुझे सिर्फ 3 बॉल सिलेक्ट करनी है. ओके, सो दिस इज माई कैपिटल N, दिस इज सपोज माई K एंड दिस इज माई स्मॉल n. इस केस में मैंने पहली बॉल एक्सट्रैक्ट की, राइट, वो रेड आई और ब्लू आई, और फिर मैंने दूसरी बॉल सिलेक्ट की. थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को फर्क पड़ेगा बट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होएगा. उसका रीजन क्योंकि दिस इज वेरी लार्ज एंड दिस इज वेरी स्मॉल. कैन यू सी दैट थिंग बेटा? बाइनोमियल में क्या था कि फर्स्ट ट्रायल एंड सेकंड ट्रायल दे वर इंडिपेंडेंट, बट हाइपरज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं है. बट अगर कैपिटल N इज वेरी लार्ज एंड स्मॉल n इज वेरी स्मॉल,
in that case you have to extract say n number of items, small n number of items, but that process that you are taking the first item then you are taking the second item, they will become almost independent. तो जब इंडिपेंडेंस वाला केस आ गया तो ये बाइनोमियल बन गया. So you can see that hypergeometric case will be approximated with binomial when capital N is very large and capital N is small n is very small. Do you understand this thing बेटा? ये समझ में आई सबको? This is very important, right? And in that case, this will become your P and this will become your Q, 1 minus P, right? तो आपका जो मीन था, ये देखिए मीन क्या निकाला है हमने इसमें, N K by N. In that case, what will this become? N into K by N क्या बन जाएगा? P. Okay? और वेरियंस देखिए, when capital N is, when N is large and small n is small. इस केस में when capital N is very large and small n is very small, what will be this limit? 1, almost 1, right? So 1 into n into what will be this P, and this will be 1 minus P. यही है ना, इसका मैच हो रहा है ना? Can you see that thing बेटा? So when capital N is very large and small n is very small, in that case you can always approximate your hypergeometric situation with a binomial situation. Okay beta? So in general we have this rule of thumb that if capital N, small n over capital N is less than 0.05, we always approximate. नहीं करोगे तो भी चल जाएगा हाइपरजियोमेट्रिक, क्योंकि बाइनोमियल इजी है विद बाइनोमियल. ओके बेटा? क्लियर है ये चीज? So you have this problem here. A manufacturer of automobile tires reports that among a shipment of 5,000 sent to a local distributor, 1,000 are slightly blemished, so not good. Okay, if one purchases 10 of these tires at random, 10 of these tires at random from the distributor, what is the probability that exactly 3 are bad? What is the probability that exactly 3 are bad? बताइए बेटा. डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो लॉट पहुंचा है उसमें 5,000 है, 1,000 आर बैड, राइट? एंड किसी ने कितने खरीदे हैं? 10. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आर बैड? सो अगर आप इसको हाइपरजियोमेट्रिक से करते हो तो 10C3, देन यू हैव नॉट 1,000C3 एंड देन 4,000C7 अपॉन 5,000C10. यही करोगे ना? 5, इज दैट ओके बेटा? 5,000 आपके पास टोटल है, उसमें से 1,000 बैड है एंड आई वांट एग्जैक्टली 3 आर बैड व्हेन आई एम बाइंग 10. सो दैट विल बी बैड में से 3 चूज कर लो, गुड में से 7 और डिवाइडेड बाय ये, राइट? सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 बैड आर चोजन. बट बिकॉज इन दिस केस क्या n अपॉन कैपिटल N क्या है? n कितना है? 10 और कैपिटल N कितना है? 5,000. हाउ मच इज दैट?
that is 0.02, which is less than 0.05. Therefore, approximate with binomial. Okay, so in that case, what will be your answer? Answer will be, बताओ binomial में कैसे answer होगा? You want 3 bad given, so probability will be B3, n is 10, and what is P? P is 1000 upon 5000. तो ये आप टेबल से देख सकते हो. So that will be 0.2013. Binomial के tables हैं. Binomial के लिए we have so many resources. Is this clear बेटा? ये चीज कैसे है? 3, 10, 1000 upon 5000. Do you know how I get it? Binomial में क्या क्या parameters आते हैं? Number of trials are 10, है ना? क्योंकि 10 tires you are choosing. What is the probability that the tire which you have chosen is bad? What is the probability बेटा? 1000 upon 5000. Because 1000 bad है आपके उसमें lot में और 5000 total है. तो probability that the tire is bad is 1000 upon 5000, and I am looking for 3 bad tires. So I am looking for B3 10, 1 by 5, and you can see from the table that its value is 0.2013. Is that okay beta? So I can approximate here with binomial because my ratio is 0.02, which is less than 0.05. So whenever your ratio is less than 0.05, you can always approximate your hypergeometric with binomial. It will just save you from calculations. Is that okay beta? हाँ बेटा, आपको मेंशन क्या होगा उसमें जो जो वैल्यूज चाहिए होंगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड दिस वैल्यू, इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. टेबल नहीं देंगे हम लोग, बट मेंशन कर देंगे जो वैल्यूज चाहिए. इज दैट ओके बेटा? Okay, now let us move on to the next one, which is negative binomial. So I hope binomial and hypergeometric are clear. अब negative binomial क्या है बेटा? Situation क्या है आपकी? Again the situation is that you have n trials. Binomial की situation क्या थी? n trials independent. Situation वही है. और each trial will result in a success or failure with a probability P and 1 minus P. P remains constant. So जो सारी binomial वाली situation है, that is same in negative binomial also, right? So same as binomial situation. अब binomial में हमारा x क्या था? कैपिटल X क्या था? Now we are looking in binomial. You looked for x successes, right? X number of successes. यही चाह रहे थे ना हम कि what are the capital X was your number of successes. In negative binomial, you are looking for the process where kth success occurs at like in x trials. Is that okay बेटा? तो इसमें क्या होगा आपके पास? जैसे वहां क्या था, n नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, ये इसकी जरूरत नहीं है. अब हमारे पास क्या है कि वी हैव ट्रायल्स. ओके, सो n नंबर ऑफ ट्रायल्स की जगह पे ट्रायल्स कैन गो, ओके, सेम एज बाइनोमियल. दीज टू कंडीशंस आर सेम. ट्रायल्स कैन गो ऑन. तो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव यू टॉस अ कॉइन, यू टॉस द कॉइन टिल यू गेट योर फर्स्ट हेड. तो क्या होगा एक्सपेरिमेंट? हेड या फिर हेड टेल हेड, देन टेल हेड, टेल हेड, टेल एंड हेड एंड सो ऑन. मतलब आप चलते जाओगे जब तक यू डोंट गेट अ हेड. तो यहाँ पे भी सेम है कि आपने क्या करना है, आपने तब तक करना है लाइक you want your kth success occur in x trials. Okay, for example, you toss a coin
and I want that fifth head, okay, I want that I get 5 heads in 7 trials. ये कैसे होगा बेटा बताइए. I want 5 heads in 7 trials. How will this occur? आपने एक कॉइन टॉस करना है. मैं चाहती हूं कि 7th ट्रायल पे 5th हेड आए, है ना. आई वॉन्ट 5 हेड्स इन 7 ट्रायल्स. इसका मतलब 7th पे एक हेड आए और उससे पहले कितने ट्रायल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6. इसमें कितने हेड्स आए? 4 हेड्स. This is what you are looking for. That you are looking for a process where there are k success in x trials. Okay बेटा, आपके पास क्या है? ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट चलते जा रहे हैं. ऑब्वियसली 5th हेड एट, मतलब इसमें मेरे ट्रायल्स, मैं चाह रही हूँ कि 5वां 7th पे है, अदरवाइज तो पहले आ गया तो मैं रुक जाऊंगी ना. ओके, आई वॉन्ट 5th हेड टू बी एट द 7th ट्रायल. इसका मतलब उससे पहले जो 6 ट्रायल्स हो चुके हैं उसमें कितने हेड्स आए? 4. Do you understand the situation? So what is the situation? Let me tell you again that you have independent trials. Okay, each trial is resulting in a success or a failure with a probability p and 1 minus p. Then I am looking for that my kth success should be at the xth trial. My kth success should be at the xth trial. Okay, so what is the probability? Do you understand the situation beta? Okay, so what is the probability that kth success occurs at xth trial? Can you tell me what will be the probability beta? बताइए. हाँ, बाइनोमियल यूज करो. क्या होगा? देखो, एक तो बात ये होगी कि ये मेरा xth ट्रायल है, इस पे मुझे सक्सेस चाहिए, राइट. तो उससे पहले कितने ट्रायल्स होंगे? x माइनस 1 ट्रायल्स. उसमें मुझे कितनी सक्सेस चाहिए x माइनस 1 ट्रायल्स में? अगर मैं चाहती हूँ कि kth सक्सेस xth ट्रायल पे हो तो इसमें मुझे k माइनस 1 सक्सेसेस चाहिए, कहीं भी आए, आई डोंट केयर, राइट. So I want out of these x minus 1 places there should be k minus 1 places where I'll put my success. And एक सक्सेस ये वाली xth प्लेस वाली, और बाकी जो आपके बचे x माइनस k, वहां पे there should be a failure. देखो बेटा, क्या कह रहे बेटा? नहीं बेटा, x माइनस 1 जो है उसमें से मैंने k माइनस 1 प्लेसेस चूज किए, उन k माइनस 1 प्लेसेस पे मैंने सक्सेस रख दिया, तो p की पावर k माइनस 1 आ गया. उसके बाद एक मुझे xth प्लेस पे भी सक्सेस रखना है, उसकी प्रोबेबिलिटी p. आप इसको कह रहे हैं? इसमें ये देखो, बाकी अगर आपके पास x में से टोटल k पे सक्सेस है तो फेलियर कितने पे होगी? x माइनस k पे फेलियर होगा ना, तभी टोटल k x बनेगा. क्लियर है बेटा? ये सिचुएशन है कि यू वांट दैट योर kth सक्सेस इज एट xth ट्रायल. इसका मतलब xth ट्रायल पे तो आपने सक्सेस रखना है ना. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? p, वो जो मैंने लिखा है. अब उससे पहले x माइनस 1 ट्रायल्स है, उनमें कितनी सक्सेस होनी चाहिए? k माइनस 1. क्यों? क्योंकि kth सक्सेस को xth पे होना है, तो दैट इज x माइनस 1 c k माइनस 1, है ना. मतलब आउट ऑफ x माइनस 1 यू चूज k माइनस 1 एंड पुट p एवरीवेयर, दैट इज p रेज्ड टू पावर k माइनस 1. इज दैट थिंग क्लियर? एंड देन व्हाटएवर स्पेसेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी स्पेसेस आर लेफ्ट? x माइनस k, वहां पे आपने फेलियर रखना है, दैट इज विद द प्रोबेबिलिटी q. क्लियर बेटा? सो दिस इज द pdf. सो pdf फॉर नेगेटिव बाइनोमियल इज, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा b स्टार. ओके, सो वी राइट इट एज b स्टार x k p इज इक्वल टू x माइनस 1 c k माइनस 1 p रेज्ड पावर k q रेज्ड पावर x माइनस k. एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी दैट
kth success occurs at xth trial. ओके बेटा, सिचुएशन समझना इज मोर इंपॉर्टेंट. पीडीएफ तो कर ही लोगे, सो दैट यू हैव अ क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू सी कि कौन सा पीडीएफ यूज करना है हमने. ओके, and you can compute that its mean without proof. I am just writing its mean is k into 1 minus p upon p, and its variance is k into 1 minus p upon p square. Okay beta, let us just do one problem and then in a basketball championship. Yes beta, नॉर्मल पी में क्या था बेटा, एक्स एन पी है ना, इसमें एन है ही नहीं है ना, नहीं बेटा यहाँ पे एक्स, तो ये देखो ये अलग चीज है, उसमें एन फिक्स था बाइनोमियल में. देयर वर एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स सक्सेसेस. ये देखो बाइनोमियल में ये सक्सेसेस थी, ये ट्रायल्स थे, टोटल ट्रायल्स, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी, है ना. इसको के भी लिख देते थे वैसे इसको, राइट, बट दे वर नंबर ऑफ सक्सेसेस. अब इसमें क्या है, यू वांट योर केथ सक्सेस टू अकर एट एक्सेस ट्रायल, राइट. हाँ, यू कैन सी दैट कि ए एन है, बट नॉट इन एग्जैक्ट सेंस, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है ना. ठीक है, समझ गए ना, डिफरेंस है. यहाँ पे एक्स जो है वो है कि कितने ट्रायल्स आपको चाहिए, वहां पे एन फिक्स था कि ट्रायल्स तो हमारे फिक्स हैं, उसके बाद नंबर ऑफ सक्सेसेस हम निकालने थे. यहाँ पे ट्रायल्स फिक्स नहीं है, राइट. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये भी एक्स भी चेंज करोगे आप. ठीक है, इफ आई वांट दैट माय सेकंड सक्सेस टू अकर एट 7th ट्रायल, ओके, और आई कैन आस्क फॉर माय थर्ड सक्सेस टू अकर एट 9th ट्रायल. तो इसमें के और एक्स दोनों चेंज होंगे. ठीक है, इज दैट ओके. बट इवेंट्स जो आपके ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट है, पी फिक्स है. इन अ बास्केटबॉल चैंपियनशिप द टीम championship series, the team that wins 4 games, ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे, 4 games out of 7 is the winner. Okay, suppose that teams A and B face each other in the championship, in the game, and probability of A winning is just a minute, 0.55 and probability of कितनी होगी, 0.45, right. What is the probability that team A will win the series in 6 games? What is the probability that team A will win the series in 6 games? फटाफट बताइए, सोचना नहीं है, बस मुझे 20 स्टार की टर्म्स में बताइए. व्हाट यू वांट, आप चाहते हो कि ए जो है वो 6 गेम्स में जीत जाए. 6 गेम्स में कब जीतेगी, जीतने के लिए कितने मैच जीतने उसने, 4. 6 गेम्स में तब जीतेगी जब 6th ट्रायल पे, मतलब 6th मैच पे वो उसका 4th विन है इन द 6 गेम्स. अदरवाइज तो 5 में खत्म हो जाएगा. अगर 5 में उसने 4 जीत ली तो वो 5 में खत्म हो जाएगा. हम चाहते हैं कि पूरी 6 गेम्स लगे उसको जीतने के लिए. सो वी वांट आर, कैसे बताओ कैसे लिखूं, you want your 4th success in 6th trial and probability of win is 0.55. So this is what you are looking for, right?
डज दैट मेक सेंस? अगर यहाँ पे इससे कम नहीं हो सकता, अगर तो यहाँ 5 हो गया तो वो पहले ही जीत जाएगी। चलो लो, मान लो वो नहीं कर रहे हम, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट, बट हमारे पास यही है कि अगर उसने 4 जीत लिया और मैं चाहती हूँ कि 6 मैचेस शुड बी देयर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल 6 मैच लगेंगे फॉर टीम ए टू विन, राइट? इज दैट ओके बेटा? सो आंसर आप निकाल लेना, व्हाट विल बी इट? इट विल बी, बताइए, 5c3 0.5 5 रेज टू पावर 4 1 माइनस 0.55 रेज टू पावर 6 माइनस 4, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओके। Then what is the probability that ये जो पैसा लगाते हैं गेम्स जब चलती हैं तो वो सब लोग ये दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, जो अच्छे लोग, मतलब अच्छे लोग क्या कहूँ यार, जो एक्चुअल एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं वो ये सभी करते हैं, राइट? what is the probability that team A will win the series? Tell me. B* की टर्म में बताइए मुझे, आप मुझे आंसर बता रहे हैं, द टीम ए विल विन, राइट? बताइए। तो हो सकता है कि वो 4, बस उसको 4 ही मैच लगे विन करने के लिए, राइट? या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको 5 मैच लगे विन करने के लिए, यही होगा ना? या फिर उसको 6 मैच लगे विन करने के लिए, या फिर उसको 7 मैच लगे विन। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट? बेटा अब हम उससे आगे आ गए ना, वो हम क्यों आगे आ गए? सो दैट आवर कैलकुलेशंस आर इजी। ये सारी चीजें आपको टेबल में दी होंगी, ओके? But obviously you can always go back to your initial thing and you can do it, but okay, but idea of doing these things is so that you can be quick in your, so आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए कि this is a situation, okay, this will fit in hypergeometric या फिर negative binomial, और वहां का PDF उठा के फटाफट डाल, that is what you should do now, okay? But obviously answer will always match if you go to your initial analysis, right? Okay, one more part can we do? Attendance रहने दें आज, okay? Is that okay? नहीं खत्म, क्योंकि टोटल कितने हैं? टोटल मैचेस मैंने लिखे नहीं, मैंने इन बास्केट 7 मैचेस आर इन टोटल, ओके? कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है, टोटल 7 है बेटा, ठीक है? C is if team A and B are facing each other in a regional playoff series, what is the, which is decided by winning 3 out of the 5 games. Now you want, now a team will win if it wins 3 out of 5 matches. What is the probability that team B will win? मतलब अब आपकी सीरीज चेंज हो गई है, दैट टीम B will win, बताओ बेटा। तीन आउट ऑफ 5 मैच आपने विन करने हैं, तो अगेन B*, आई वॉन्ट 3-3, अब मेरा बस B ने विन करना है 0.45 हो जाएगा, या फिर 4th पे जीत जाए वो, मतलब 4 में जीत जाए, या फिर वो 5 में जीत। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग, सेम है जो हमने ऊपर किया, बट आपने प्रोबेबिलिटी चेंज करनी है, क्योंकि नाउ वी आर लुकिंग फॉर B विनिंग, राइट? तो प्रोबेबिलिटी 0.45 हो जाएगी और आपका 345। इज दैट ओके बेटा? ओके, थैंक यू।